Friends, today we are going to discuss about mathematical reasoning, particularly mathematical reasoning based on digits. But before starting the class, I would like to welcome all of you to my educational channel Maths Guru Oja. If you have not subscribed my channel, kindly subscribe the channel to get the information related to the different mathematical concepts. So let's start the class. Here one question we can see that find the missing number in the following figure. Here certain patterns are given and we have to find the missing number. The first pattern we can see here 1, 2, 3, 4 written, and in the circle it is 1 written. In the same way second pattern we can see here 2, 3, 5, 7 written, in the circle it is 2 written. So based on these two patterns we have to find what should be the number in this circle if the other numbers are 4, 7, 3, 5. So when we are going to solve certain sums based on mathematical digits, our first responsibility is to identify the pattern. So if we will see the pattern here this is a pattern. If we will assume that all these numbers are unknown to us, so let's take it as A, B, C, D, and in the circle it is given E. So how we can get the value of E? It is like this: we have to subtract A from the B, C from the D, and then what result we will get, that we have to multiply. That is the pattern here. Again let's see the pattern here. The pattern is B minus A, that is 2 minus 1 is 1, and then C minus D or D minus C, 4 minus 3 is 1, and then that two number we have to multiply. So in this case 1 into 1 is 1. यहाँ पे चेक करके देखते हैं 3 minus 2 is 1, 7 minus 5 is 2, 1 into 2 is 2. So based on these two we can get the answer for this particular pattern. 7 minus 4 is 3, 5 minus 3 is 2, so 3 into 2 is 6. That means the required result for this pattern will be like this: 7 minus 4, that is 3, 5 minus 3, that is 2, and 3 into 2 is 6. So this is the particular pattern in this sum. So these type of questions are important for different competitive examinations like banking, NDA, SSC. So if we will learn this pattern, we will able to identify the pattern. These type of sums are very easy to solve. So let's start the another sum. So second pattern is, here three numbers are given. The circle is divided into 4 parts. In the first part it is written 6, second part 5, here third part is 126. So based on this pattern we have to identify what should be the number in this fourth part. So let's see the pattern here, very simple pattern. This 126 is obtained from this. So the pattern is like this: you have to do the cube of this number, and with that if you add 1 you will get 126. Like this, you see, 5 whole cube plus 1 is 126. So we understood that here whatever be the number, that number will be equal to cube of this plus 1, cube of this plus 1. So what is 6 cube? 6 cube is 216, and with that if you will add 1 it will be 216. So in this type of pattern sometimes we have to do the square, sometimes we have to do the cube, vice versa also. Sometimes we have to do the cube root also. Say here 125 given, here 5 given, here it will be say 343. You have to write what should be the number here. So we have to understand that a 125 or 5 means it is the cube root by cube. So then 7 cube is 343. So 343 cube root will be 7. So like that we can identify the pattern here. Here the pattern is we have to do the cube of the number, and then with that number if we add 1 we are getting the result. So I hope this second sum is clear to all of you. Now let's start the third sum, that is also similar to this particular pattern. Here more than one numbers are there, and this sum is so important for different competitive examinations because it is a little bit trick is there. If we will able to understand the trick, then only we will able to find the result. Here we can see that several numbers are there, the 3, 5, 8, 13, 22.
then we have to find what should be the number here. तो इसके लिए first of all what we have to do, we have to write these numbers what is given and we have to see the pattern here. So first number is 3 given, next 5 दिया हुआ है, then 8, 13, 22. Here what should be the number? So I have calculated here and I have written the result 39, but how we will get that this is 39? तो आप लोग देखिए 3 से 5 ये कितना इंक्रीज हुआ, 2 इंक्रीज हुआ, 5 से 8 अगेन 3 इंक्रीज हुआ, 8 से 13 5 इंक्रीज हुआ है, देन 13 से 22 9 इंक्रीज हुआ है. सो हम लोग देख रहे हैं 2 देन 3 देन 5 देन 9 देन क्या इंक्रीज होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई. तो ये नंबर कितना इंक्रीज होगा इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस पैटर्न को हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा. तो चलिए देखिए, अब ये 2 से 3 यहाँ पे 2 इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे 3 इंक्रीज हुआ है. सो 2 से 3 दैट इज 1 इंक्रीज हुआ है, 3 से 5 दैट इज 2 इंक्रीज हुआ है, 5 से 9 दैट इज 4 इंक्रीज हुआ है. यहाँ पे कितना इंक्रीज होगा वी हैव टू फाइंड. तो अगेन यहाँ पे देखिए ये जो इंक्रीज है 1, यहाँ पे इंक्रीज है 2, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए. 1 इंटू 2 2, मतलब विद दिस वी आर मल्टीप्लाइंग 2, 1 इंटू 2 इज 2. सिमिलरली यहाँ पे जितना इंक्रीज हुआ उसके साथ 2 इंटू कीजिए, आपको ये मिल जाएगा. तो अब हम लोग को समझ में आ गया जी यहाँ पे जो नंबर होगा वो इसके साथ 2 इंटू करना है. तो 4 इंटू 2 इज 8. तो वी अंडरस्टूड दैट यहाँ पे 8 होगा. अब ये 8 हो गया, दैट इज द डिफरेंस ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर विल बी 8. तो अगर मैं इसके साथ 8 पर प्लस कर दूं तो आई विल गेट व्हाट इज द नंबर हेयर. तो 9 प्लस 8 इज 17, दैट मीन्स हेयर 17 होगा. तो दिस नंबर विल बी 17 मोर. सो अगर इसके साथ 17 प्लस कर दें तो वी विल गेट 39. दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. से ये बहुत ट्रिकी है, इसलिए वंस अगेन इसे हम लोग देखते हैं कैसे इसे करना है. सबसे पहले मैंने वट एवर नंबर्स आर गिवन आई हैव रिटन 3, 5, 8, 13, 22 और नेक्स्ट नंबर इज द क्वेश्चन मार्क. अब हमको देखना है जी इससे इसका कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है. तो हम लोग देख सकते हैं जी 3 to 5 2 इंक्रीज हुआ, 5 to 8 3 इंक्रीज हुआ, 8 to 13 5 इंक्रीज हुआ, 13 से 22 9 इंक्रीज हुआ. अब इस नंबर को हम लोग को ऑब्जर्व करना है, जो इंक्रीज वाले नंबर हम लोग लिखा. 2 से 3 1 इंक्रीज हुआ, 3 से 5 2 इंक्रीज हुआ, 5 से 9 4 इंक्रीज हुआ, 9 से नेक्स्ट नंबर कितना इंक्रीज होगा ये हमको सोचना है. आई हैव रिटन हेयर बट हमको सोचना है जी ये कितना इंक्रीज होगा. कैसे सोचेंगे, तो ये देखिए आप, ये जो नंबर है इसके साथ 2 इंटू कर दें तो वी आर गेटिंग दिस नंबर. सिमिलरली इसके साथ 2 इंटू कर दें तो वी आर गेटिंग दिस नंबर. तो आवर नेक्स्ट नंबर विल बी 2 इंटू दिस. सो 4 के साथ 2 इंटू करें तो यहाँ पर क्या होगा 8 होगा. सो वी अंडरस्टूड यहाँ पर ये 8 आएगा. अब ये 8 क्या है, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है. दैट इज यहाँ पे जो नंबर होगा और ये नंबर दोनों के बीच का डिफरेंस 8 है. तो ये नंबर क्या होगा 9 प्लस 8 दैट इज 17. दिस इज 17. अब वी गॉट द डिफरेंस बिटवीन 22 एंड दिस नंबर. 22 और इस नंबर के बीच का डिफरेंस 17 है. तो अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, वी विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सो आई होप दिस सम इज ऑलमोस्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको इस तरह का सम्स को और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट कम टाइम में इसे सॉल्व किया जा सके. सो लेट्स वी हैव टू स्टार्ट द नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर 3 गिवन, हियर 5 गिवन, हियर 2 गिवन, हियर 5 गिवन एंड हियर 25 गिवन. तो बेस्ड ऑन दिस पैटर्न वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी द नंबर हियर. तो हियर व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज वेरी सिंपल. वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम दिस, दैट इज 5 से 3 को सब्सट्रैक्ट करना है. देन 2 फ्रॉम दिस, 5 माइनस 2, व्हाट वी विल गेट दैट 2 वी हैव टू ऐड. उन दोनों नंबर को हमको ऐड करना है एंड देन उसका स्क्वायर करना है. तो कितना होगा ये 5 माइनस 3, ये देखिए 5 माइनस 3 वो होगा 2. देन 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 वो हो गया 3. इन दोनों नंबर को प्लस करके स्क्वायर कर देने से ये नंबर आ रहा है. सो 2 प्लस 3 इज 5, 5 स्क्वायर इज 25. तो चलिए इस पैटर्न के हेल्प से इसे सॉल्व करें हम लोग. 7 माइनस 2 और 4 माइनस 3. तो देखिए 4 माइनस 3 हो गया 1, 7 माइनस 2 हो गया आपका 5. तो हमको यहाँ पे डिफरेंस 1 और 5 मिला. तो इफ वी विल एड 1 एंड 5 वी विल गेट व्हाट 6. 6 स्क्वायर इज 36. सो हियर वी हैव टू राइट 36.
So this is the way we can solve this sum. Let's see the another sum, very interesting sum, and how we can solve it. Here certain numbers are written in rows and column. यहाँ पे question mark, that is the number is not given. Here 13, 49, 9, 17, 69, 13, 11, 59. तो based on this pattern हमको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या नंबर होगा. तो एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो दैट पैटर्न हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सो हियर व्हाट इज द पैटर्न, दैट इफ वी मल्टीप्लाई 2 विद द फर्स्ट नंबर इन द फर्स्ट कॉलम, we multiply 2 with this number, the number in the first column, the number in the first column, this is the first column, and then 3 with the second column, and we will add, then we will get the number in the third column. Once again I am telling that if we have to multiply here 2 with the first column, 3 with the third column, second column, and if we will add these two, we will get the number in the third column. तो चलिए करके देखते हैं होता है क्या. 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, 13 2 जा 26, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया, 11 इंटू 3 इज 33, दोनों को प्लस कर दिया मैंने तो 59 मिला. यहाँ पे चेक करके देखते हैं, 9 इंटू 2 18 हो गया, 17 इंटू 3 51 हो गया, 18 प्लस 51 इज 69. तो वी अंडरस्टूड दैट पैटर्न क्या है. अब इसी पैटर्न को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. दिस नंबर इज अननोन टू अस, तो सपोज मैंने इसे ए ले लिया, तो इसके साथ 2 इंटू करना है. तो देखिए 2 इंटू ए प्लस नेक्स्ट नंबर के साथ 3 इंटू करना है. सो नेक्स्ट नंबर 13 है वहाँ पे, तो 13 इंटू 3 इज 39, एंड देन वी हैव टू डू व्हाट, जस्ट वी हैव टू राइट इक्वल टू 49. मतलब दिस इज द वे, आप देख सकते हैं इस नंबर के साथ हमें 2 इंटू करना है. सो इसे मैंने ए पकड़ लिया, तो 2 इंटू ए लिखा मैंने, प्लस इस नंबर के साथ 3 इंटू करना है, सो 3 इंटू 13 लिखा मैंने, और इन दोनों को प्लस करने से दैट विल बी इक्वल टू 49. अब इस इक्वेशन से, ये जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हुआ, इस इक्वेशन का हेल्प से हमें ए का वैल्यू निकालना है. वेरी इजीली वी कैन फाइंड. यस, चलिए देखते हैं क्या होगा ये रिजल्ट. सो 13 इंटू 3 इज 39, 49 से 39 माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 होगा. सो दिस इज द वे वी कैन सोल्व दिस पर्टिकुलर सम. So let's start the last sum of mathematical digits. Which one number can be placed in the value of question mark? Here the question mark is there. In that question mark, which value I can write? So here also we have to identify the pattern. 93, 27, 63, 3. So we have to understand that how this is possible. तो आप लोग देख सकते हैं जे in the first case 93 and 27, 93 and 27 and 63. इससे कैसे ला सकते हैं हम लोग. तो अगर हम लोगों ने इस दो नंबर को प्लस किया, करके इससे माइनस करेंगे तो देखेंगे जी ये रिजल्ट आ रहा है. वंस अगेन आई एम टेलिंग, 27 और 63, इसे अगर हम लोग प्लस करें तो कितना होगा 90. देखिए 27 प्लस 63 90, इसे 93 से माइनस कर दीजिए 3, दैट इज ये नंबर आ रहा है. इसी लॉजिक को या पैटर्न को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं. 37 प्लस 38 हो जाएगा आपका 75, उसे 79 से माइनस कर दीजिए, दैट इज 4. अब इस पैटर्न को यूज़ करके वी कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू हेयर. तो हेयर व्हाट इज द वैल्यू, 16 एंड 42. चलिए 16 और 42 को प्लस कीजिए. यस, इट विल बी 58, एंड देन दैट वैल्यू वी हैव टू सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 67. तो अगर हम लोग 58 को 67 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 9. सो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 9. सो दीज आर द सम्स बेस्ड ऑन मैथमेटिकल डिजिट्स. सो आई होप आप लोग को ये सब सम्स देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सम्स बहुत ही एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं. अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि सबको मैथमेटिकल रीजनिंग का केस में एग्जामिनेशन में थोड़ा हेल्प हो जाए. सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल. और अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ मेरा बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं अदर वीडियोज़ जो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए. थैंक यू.